One of India's finest openers, Shikhar Dhawan, turns 38 today. As we wish Dhawan on his birthday, we would like to figure out why he's not even being considered to open for India again despite his good show in the IPL. On this session on Off the Pitch with Ankit, we will discuss that and also figure out if he can be considered for the upcoming T20 World Cup if he has a tremendous IPL. And to discuss all of this, we have with us our panel, and I'll just introduce you to them. We have Biswajit Jha, who is an ex-sports editor and an author. We have Sunny, and of course, you can see somebody who looks very much like Shikhar Dhawan, the man himself who turns 38. But yes, we have his fan, his doppelganger, you can call him. We have Ram Bahadur Dhawan with us. He's a super Dhawan fan. So welcome to the show, guys. Without wasting any time, I'll start with you, Ram. Ram, शिखर धवन टर्न्स 38. कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तो आपका गॉड 38 हो गया. किस तरीके से आज उनका बर्थडे आज आप मनाओगे, धवन? मैं सबसे पहले तो जितने भी सारे उनके फैंस है और जितने भी सोशल मीडिया के जितने लोग देख भी रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि आप भी विश करें और मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं माई गॉड गब्बर को कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और हेल्थ दे और टीम इंडिया में जल्दी वापसी करें। तो मैं हर साल उनका बर्थडे अच्छे से विश करता हूँ, गरीब लोगों के साथ करता हूँ, अनाथालय जाता हूँ, कंबल वितरण करता हूँ। तभी ठंडे के मौसम में यहाँ तो बारिश भी हो गया तो अच्छा करता हूँ, मैं शाम को करता हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से करता हूँ। जरूरतमंद लोगों को मैं मदद भी करता हूँ, तो वैसे मैं उनको उनका Right. So yes, I think we have some network issues over here with Ram, but Ram has already made it very clear what a soul he is. Ram, so nice of you, Ram. यार so nice of you. आप जाके लोगों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हो on शिखर धवन's birthday. I think इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है to show your love, respect, and adulation for your hero, your idol, Shikhar Dhawan. We'll come back to you, Ram, again. But for the meanwhile, let me just move across to Biswajit over here. Biswajit, as I already pointed out in my opening introduction, where I pointed out that, we feel that if form is everything in sport and age is not to be considered, taken into account in sport, because form is what you, are in, and you are in your best shape to go out there and do the job. So if that is the case, Dhawan has had a very good IPL season last year. With whatever limited opportunities he gets, he's making it count. So in the IPL this year that concluded earlier this year, Dhawan has played 11 matches. He has scored 373 runs with a highest score of 99, where he remained not out in that match. His average has been a staggering 41.44. And of course, his strike rate has also been very good. It has been 142, which is very good. He has 350s in the last edition of the IPL. So the stats are very good, Biswajit. Why not consider Dhawan, where he also provides you that left-right combination at the top? Yeah, Biswajit. yeah. Dhawan has always played well in the ICC trophies, especially in the World Cups. Also, he was man of the series in Champions Trophy 2013, 2018, and he was the highest run getter for India in 2015 World Cup. But right now, I don't think that selectors are considering him. I don't know the reason exactly. Maybe we have some youngsters who have been performing better than him. I don't know the reason. But yes, if he has a tremendous IPL this season, and then I think he can be considered. There is no harm in considering a player because we need someone who can play for India, who can play well for India. If he helps India win another trophy, T20 trophy, which we didn't win after 2007. So there is no harm in picking Dhawan. But the thing is that But I think again, we you have see too over many here, players. Biswajit, the fact that, Dhawan would also be in competition with quite a few of them. There is, of course, a Rituraj Gaikwad, a Yashasvi Jaiswal. You also have a Shubman Gill right there. Why not Yeah, consider yeah. a Ishan Kishan? And all of this, because I'm considering Rohit Sharma, is a certainty he is going to feature in the T20 World Cup coming up next year. So considering that, I'm talking about the other opener, the guy who's going to Yeah, partner yeah. Rohit. That's And the Dhawan problem. has He a has very not. good record. Yeah, Yeah, right. he has not performed that badly in T20 or ODIs. ODIs, so he's one of the greats in ODIs. But the problem is that we have got too many youngsters who have been performing really well
for the last couple of years, and that's maybe the issue. Whatever we have seen in the last couple of years, we have seen that selectors might have might not be thinking about him, because I don't know the reason, because we all expected that he would be leading the Indian team in the in that Asian Games, but he was also not selected that time. So I don't know. I think that selectors are not considering him right now. So isn't that a tad bit unfair on the guy, the southpaw? Biswajit, what do you think? I feel it's a little unfair because what you are Little doing over unfair, here is maybe. you are Yeah, yeah. looking ahead. Your problem is, your point over here is, your point of contention here is the fact that you are looking ahead. That's all you have to say on Yeah, this. But in yeah, yeah. sport, that should not be the case. That is what I'm trying to say. It has to be But in formed, and T20, only form what you have to be picked on. but in T20 also, you know that if Rohit Sharma is there, and then you don't want that too many senior players shouldn't like crowd that the team, that may hamper, because fielding, he is not that bad. I think he is a super fielder also. But in the last couple of years, whatever I have seen, the selectors, I think the selectors are not considering him because of his age or whatever the reason. And he has been very graceful during the World Cup also. No, no, Whenever he has been he graceful and all that. I agree, Biswajit. Is it unfair? Yes, no, maybe. Just a one-word answer, and then I move on. maybe because because the other players are also performing, Shubman Gill, Jaiswal, and all. So you can't say that we are fielding with like underperformers. No, we have been the juniors have been performing well. Sunny, Biswajit says maybe he feels he's in a dilemma over here. He feels that maybe Shikhar Dhawan, things have been a little bit unfair with him. You know, the way the board has behaved with him when it comes to selection and all of that. It has been a little unfair. आपको क्या कहना है सनी? आप क्या सहमत है बिस्वजीत के साथ, या फिर आपको लगता है शायद 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 अगर उनका आईपीएल बहुत ही बढ़िया रहा, he may be back in contention for a spot in the World Cup. Who knows? Maybe as a reserve opener. अंकित 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 सबसे पहली चीज तो ये है, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले उनका ओडीआई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो इसीलिए अभी बिस्वजीत ने जैसा बताया एशियन गेम्स की स्क्वाड वो लीड करने वाले थे, ऐसी रिपोर्ट्स थी। ये रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी थी, क्योंकि उनका ओडीआई इतना अच्छा था, उसकी जगह ऋतुराज गायकवाड को देख के एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। और अगर टी20 की बात करते हैं तो शिखर धवन के साथ एक और भी है। अभी आपको याद होगा रिसेंटली किसी से बात करते हुए उन्होंने ये बोला कि अगर मेरे और शुभमन गिल में से किसी एक को चुनना हो तो शुभमन गिल को चुनना चाहिए। तो आई डोंट थिंक शुभमन गिल की जगह पे शिखर धवन खुद भी जाना चाहेंगे। और अगर अगर रोहित शर्मा टीम लीड नहीं कर रहे, अगर तब उस टीम के अंदर शिखर धवन के होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर तो हम लेके जाएंगे। तो इट वुड बी शिखर धवन। अगर रोहित शर्मा नहीं है तो शिखर धवन वुड बी अ वाइज चॉइस। और वाइज चॉइस क्यों होगी? क्योंकि तुम्हारा जायसवाल के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऋतुराज के पास वर्ल्ड कप का Exactly. एक्सपीरियंस नहीं Shikhar Dhawan, what he does is he brings a lot of experience to the table, Sunny. है। And that cannot be brushed under the carpet. That's what I'm Exactly. trying to say over here. And Exactly. moving on, Biswajit, I'll come to you, Ram. So, Ram, जब आप बात कर रहे थे पिछले बार, आपका थोड़ा सा शायद नेटवर्क इशू हो गया था, तो आज आप जाके कंबल बांटने वाले हैं टू द पुअर पीपल, राइट? और ये आप हर साल करते हो? नहीं, मैं हर साल करता हूँ। मैं हर साल मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही करता हूँ, क्योंकि जो ठंडा में होता है ना, मैं तो बराबर देखता रहता हूँ बाहर जो बेचारे लोग होते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये कि एक अच्छा सा सेलिब्रेट, जो लोगों की दुआ वहां तक पहुंचे, उनको दुआ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं दुआ लगती भी है। तो मैं सबके साथ जुड़ के एक अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ उनका, ताकि भगवान भी उनको मतलब मेरा देखो तो राम, दुआ तो लगता ही है, इसीलिए तुम्हें आज इतना सारा प्यार मिलता है यार लोगों का। मैं देखते रहता हूँ तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हें मैं लगभग फॉलो करता हूँ। मैं सनी, हम लोग फॉलो करते हैं तुम्हें, बिकॉज हम Yes, तुम्हें yes. जानते भी है काफी करीब से। तो हम देखते हैं कि तुम्हें जब हम पहले बार मिले थे और आज जब हम आपको देखते हैं, तो एक जमीन आसमान का फर्क आया है। आपका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज लोग आपको ऐसे ही पहचानते हैं, राम के नाम से आज लोग आपको पहचानते हैं। लोग आजकल आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये वही होता है ना कि भगवान का, आपने भी लोगों का मदद किया और बिल्कुल। ये लोगों का प्यार है आपके तरफ।
तो लास्ट टाइम आप शिखर धवन से कब मिले थे? क्या आपको लगता है शिखर धवन का मौका बन सकता है वर्ल्ड कप में, राम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सितंबर में मिला था, अक्षय पाजी के साथ में आए हुए थे लखनऊ में, और उनका बर्थडे भी था, तो बर्थडे में गए थे उज्जैन, उज्जैन से यहाँ लखनऊ आए थे, तो बड़ा वो वैसा इंसान कभी नहीं मिल सकता। और मैं तो खैर एक छोटा सा बस, तो मैं बस उतना ही जानता हूँ, क्योंकि जैसे वो इंसान है शायद भी कोई इंसान वैसा बन सकता है, क्योंकि वो मेरे लिए गॉड ही है, तो भगवान से, और वो जब एक दो मुलाकात भगवान हुआ मेरे हैं। तब उन्होंने आपको क्या कहा? वही बराबर हाल चाल लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं, हर एक चीज के बारे में पूछते रहते हैं, क्या चल रहा है, कैसा है, क्या नहीं है। बस वही इमोशनल थोड़ा सा हो जाता हूँ कि टीम इंडिया में थोड़ा सा वही नहीं हो पा रहा। बाकी वो अपना तो प्रैक्टिस, अपना हर चीज जारी रखे हुए हैं, और जिस चीज पे उनका उनका फोकस रहता है वो उस फोकस को कामयाब भी कर लेते हैं। तो उनका भी फोकस वही है, कोई भी चीज को छोड़े नहीं है कि नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा कुछ भी चीजें नहीं हुई तो उसको अलग कर दे, ऐसा भी कुछ चीजें नहीं है। वो बराबर अपना फिटनेस, अपना हर चीज को लेके चल रहे हैं। तो बस वही है, मेहनत तो रंग लाती है, और एक ना एक दिन तो आएगी ही। तो आई उम्मीद होप कि करते हैं राम जल्दी। कि उनका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनका चर्चा बीसीसीआई के कॉरिडोर्स में भी हो, हम यही उम्मीद करते हैं। सनी, आप तब मुझे कुछ कह रहे थे शायद आज सुबह या कल रात को। सर, बिस्मित, आई एम कमिंग टू यू इन सम टाइम। सनी, तुम कुछ कह रहे थे कि शिखर धवन शायद तुम्हारे परसेप्शन से एक अलग इंसान बन गया है। ही इज चेंज्ड अ लॉट ओवर द पास्ट 1 year. आई थिंक दैट इज व्हाट यू वांटेड टू से आफ्टर हिज पर्सनल सेटबैक दैट ही हैड, in his marriage. Sunny. या अंकित बट लेट्स नॉट ड्रैग ऑल इनटू दिस। या शिखर धवन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमने सबने देखे हैं, इतना ज्यादा काम कंपोज म्यूजिक वगैरह के अंदर उन्हें पहले से ही इंटरेस्ट था म्यूजिक। और आज के टाइम पे शिखर धवन भी बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। आप उनका गाना देखोगे, गाना आया है, काफी सारी चीजें हैं ऐसी। अच्छा, एक चीज मैं राम से पूछना चाहूंगा, राम गब्बर को गब्बर किस लिए बोलते हैं? शिखर धवन को गब्बर किस लिए बोलते हैं? मैं मान जाऊंगा उसके ये बाद राम राम को बादल भी तुम पता ध्यान से नहीं होगा बताओ। सनी, ये राम को भी पता नहीं होगा। बताओ राम। अरे गब्बर इसलिए बोलते हैं कि भाई उनका जो दिल है ना वो सब। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर। अरे राम, तुम पकड़े गए। रॉन्ग आंसर है। सनी, बताओ किस लिए बोलते हैं? एक अग्रेशन के लिए बोला ना आपने, अग्रेशन के लिए नहीं बोलते। एक मूवी थी शोले, उसके अंदर गब्बर का एक डायलॉग था, ऐसा ड्रेसिंग रूम में शिखर धवन अपने टीममेट्स के साथ मजाक करते हैं, ऐसा बोल के वो डायलॉग, सेम डायलॉग। क्या डायलॉग है? तो इसलिए वो गब्बर है। सुअर के बच्चों। हाँ, वो ये तो काफी फेमस आइकॉनिक गब्बर डायलॉग डायलॉग। है हाँ ये हाँ तो जो अमजद खान बोलते हैं शोले में। हाँ इट्स क्वाइट हाँ। एन आई कैन सी Biswajit having a smile on his face. Biswajit, also I saw your hand go up. What was it about? या एक्चुअली अंकित, मैं जब दिल्ली में था तो जी न्यूज, जो ZNews.com है उसका मैं स्पोर्ट्स हेड था। तो मैं दो बार एक्चुअली धवन से मतलब इंटरव्यू किया, 2 बार। तो धवन को मैं हमेशा, जैसे धवन को एक बार मतलब टीम में तब मौका भी नहीं मिला, 2007-8 में एक बार मैं इंटरव्यू किया, तब फिरोज कोटला में वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं आकाश चोपड़ा से भी मिलने गया था। तो फिर क्या हुआ, जो धवन, मैं बोला, जो मैं धवन को एक बोला था, मैं धवन भी कूल कूल टाइप का कैरेक्टर है। तो मैं वो 2004 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसमें वो फर्स्ट केम इन टू द लाइमलाइट, और वो सबसे ज्यादा रन बनाया था उस टूर्नामेंट में, तो हाईएस्ट रन गेटर था। तो मैं बोला जी, आप तो इंडिया खेलने वाले हो, कभी भी आप खेलोगे, मैं आज ये बोल रहा हूँ। तो बोल रहा है, अरे सही सही, आप ऐसा मानते हो? मतलब वो, मतलब खुद प्लेयर्स बोलते हैं कि मैं एक दिन खेलूंगा, लेकिन वो मतलब वो छोड़ के रखा था, ऐसा नहीं था जो उसमें। और फिर मैं देख रहा था उसके पहले कुछ मतलब वही T20 टूर्नामेंट था डोमेस्टिक, तब आईपीएल इतना वो नहीं हुआ। तो फिर वो T20 वर्ल्ड कप के T20 जो टूर्नामेंट था, सैयद जो मुश्ताक अली ट्रॉफी होता है, तो उसके पहले सब जैसे मतलब मारने का कोशिश कर रहा है, लेकिन शिखर धवन क्या कर रहा है उसमें भी वो डिफेंस कर रहा है। फिर उस टाइम मतलब वो अजीब ही बंदा है, मतलब इतना कूल काम। और हम लोग धोनी को मानते हैं, बट शिखर धवन को भी मैं देखा 2-3 बार, जितना भी मुलाकात हुआ, तो उस वो भी काफी मतलब ऐसे टाइप का। और ऑफ लेट तो उनका, क्योंकि देखो कोई भी प्लेयर वो बोल रहा है, इतना कैलिबर के प्लेयर जो आईसीसी ट्रॉफी में इतना अच्छा खेला है, बहुत लोग उनके लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, और खुद क्या बोल रहे हैं, शुभमन गिल अच्छा खेल रहा है। तुम इंडियन क्रिकेट में कोई भी जगह पे देखे हो कभी ऐसे? मेरे को तो नहीं लगता है कि कभी भी हम लोग ऐसे किस प्लेयर को देखो, इतना अंदर से अच्छा आदमी। मैं 2-3 बार मिला, उसके भी मैं जानता हूँ। तो मैं सही पे मतलब
हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब इट्स ही इज एन अमेजिंग कैरेक्टर। और उसके बाद भी जब वो शादी के इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना कुछ हुआ, बट कभी बिटरनेस उनके सामने नहीं आया, उनके मुंह से कोई कब बिटरनेस और खराब नहीं आया। ठीक है, जिंदगी को जैसे है, मतलब ये जो मॉन्क लाइक अप्रोच है ना, इसको मेरे को अच्छा लगता है शिखर धवन में। एंड ही इज ए ग्रेट ग्रेट गाय। And that is exactly what Ram was also trying to point out. I mean, Ram had so nice words for Shikhar Dhawan over here, such nice words over here. Sunny, आपको क्या कहना है? First time when you saw Shikhar Dhawan, any memories you have when you saw him bat or something? Can you recall, Sunny? Can you share it with our viewers joining us at this अंकित, point of time? शिखर धवन ने स्ट्रगल बहुत करा स्टार्टिंग में, जब उन्होंने अपना डेब्यू करा ना फॉर इंडिया। उसके बाद एक एरा, जैसे एक एरा धोनी का चला, उसके बाद विराट कोहली का तो चल ही रहा है। शिखर धवन ने बहुत जल्दी एकदम अपना एरा बना लिया कि ओपन करने एक बंदा आता है लेफ्ट हैंडर, शिखर धवन I गब्बर है, think गब्बर Shikhar मारते हैं। Dhawan was also the man of the tournament in the Under 19 World Cup in. I'm not too sure. I think he's from the 2004, 1998 batch. 2004, 2004. Okay. 2004, I think he Biswajit, was he the was the he man was of the the tournament, right? yeah, he He was was the top opening run the hitter, batting with son. Robin Uthappa. Yeah, yeah. Right. Yes, Sunny, continue. सो यार, T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो उसे कहीं ना कहीं अगर बीसीसीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर होते, मैं भी ये सेम चीज के ऊपर मैं भी सोच रहा था, तो उन्हें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कोई तो T20 खिलाना चाहिए था ना। फिर सूर्य कुमार यादव टीम लीड कर रहे हैं, उसकी जगह शिखर धवन कर लेते, सूर्य कुमार यादव पूरा वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं। But तो आई can't डोंट Shikhar हाँ, नो। Dhawan actually break the door open और with a इसके साथ साथ mind-boggling IPL? ये ही सेम चीज एक और प्लेयर के साथ थी, उसकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, इनके शामी। शामी भी उस टाइम पे काफी समय के लिए टीम इंडिया से But बाहर Shami था। तो उससे उभर के आ चुके हैं. जैसे वो प्रॉब्लम सही हुई, ठीक हुई थोड़ी सी, उसके बाद शामी उससे उभर के आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिखर धवन अभी उस हेड स्पेस में शायद नहीं है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, इंडिया को लीड करने में जा सके। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, बीसीसीआई भी शेयर नहीं कर सकता सारी चीजें। दैट कुड बी द रीजन। बट यार, T20 वर्ल्ड कप के अंदर शिखर धवन वुड बी द एस प्लेयर। अगर रोहित शर्मा नहीं खेल रहे तब वो खेलने के लिए आएंगे, जैसा मुझे लगता है। This is a very valid point that you make, that if Rohit Sharma does not play, देखो will he really अंकित अंकित खेलना right चाहिए decision? नहीं चाहिए डिफरेंट इशू है एक्चुअली, बट मेरा जो मानना है आज के डे में, तो बीसीसीआई इज नॉट लुकिंग एट हिम, मतलब वो टोटल स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं आज And के that's डेट my में। point. अब That's my सिचुएशन point, Biswajit, over here. Isn't it unfair? yeah, little unfair, but again, I have said the same thing that because all the players, all the players have been performing so well. इंडिया में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, वी हैव ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा है, हमारे पास बैटर्स There is कमी a नहीं है। problem of plenty, but you do not know how to, treat your players well. I think that is another problem. There is a problem of plenty, but there are other problems as well that exist. बट Is what I'm trying to figure out. अंकित प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी है, लेकिन हम देखते हैं अलग अलग सीरीज के अंदर अलग अलग कैप्टन होके जाता है। अभी देखो, तीन है, तीन फॉर्मेट का एक हम गेम खेलने जा रहे हैं बायलैटरल, तीनों में अलग अलग एक अलग अलग कैप्टन, उधर सूर्य कुमार, उधर KL राहुल, इधर रोहित शर्मा। तो ऐसे किसी सीरीज के अंदर तो बीसीसीआई को रखना चाहिए था। अगर प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी भी आप बोल रहे हो, तो एक सीरीज भी नहीं थी। ऋतुराज गायकवाड कहीं लीड कर रहा है, कहीं सूर्य कुमार यादव लीड कर रहा है, कहीं हार्दिक पांड्या लीड कर रहा है, कहीं पे KL राहुल भी लीड कर रहा है, और एक और चीज शुभमन सनी, गिल and भी I शायद want लीड to कर tell सकता है। everybody over here, शिखर धवन के केस में what also works is, of course, his experience, which और तजुर्बा एक ऐसा चीज होता है सनी एंड एवरीबॉडी, जो तुम रिप्लेस नहीं कर सकते हो. दैट इज बिल्कुल प्राइसलेस, बिल्कुल। that's invaluable. And I think Ram would also agree with me, right, Ram? Yes, बिल्कुल बिल्कुल। right, Ram. So I think it's time, we take one last prediction as to what happens to Dhawan. Does he make it to the World Cup or not? And we'll actually take predictions on percentages over here. I'll start with you, Biswajit. Biswajit makes all the important predictions. Initially, you he feel that it's won't absurd, but he won't be eventually it turns out to be true. Biswajit. Ankit, it would be so unlikely if he plays in the World Cup, T20 World Cup for India. It's so unlikely. The percentage is 9 and 1. 90% he won't play, and 10% he will play. So Biswajit, I don't 10% think is he a would lot. be. No, 10% is a lot, but 90% is the odd is heavily against him. The odds are heavily against him, but yes, hoping he comes up and breaks all the selection doors open and all that. It would add a new dimension to this Indian squad, I feel. Sunny, आपको क्या लगता है? कितना प्रतिशत चांस है? सेम कितना सेम नहीं है? सेम 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 विश्वजीत के साथ। 90-10.
राम, आपको क्या लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या सोचते हैं? बताओ राम। नहीं, मैं तो वही सोचता हूँ, मैं तो वही चाहता हूँ, जितने भी गब्बर फैंस है वही तो चाहेंगे कि भाई जल्दी अपने ब्लू जर्सी और टीम इंडिया में दिखे। तो मेरा तो वही है कि भगवान से इस बर्थडे पे वही दुआ करूंगा कि टीम इंडिया में जल्दी वापसी हो और आगे जितना भी गेम खेलना अपना खेले और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। One Yes, more Vishwajit. prediction, Ankit. Yes, Vishwajit. Yes. If he doesn't get selected for T20 World Cup, I think he will retire from the international cricket. I also think that way. So yes, hoping that we can see Shikhar Dhawan in the Blues again. Yes, he has got an opportunity with the IPL coming up. He'll get a long run in the IPL. So hoping that he gets a lot of runs and he can break the selection doors open. And also before we sign out on off the pitch with Ankit on India.com, I would like to take this opportunity to wish Shikhar Dhawan a very happy birthday. Gabbar Zindabad. Thank you.